اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قاتلان حسین علیہ السلام کا انجام اور عذاب الہی کا ظہور کتب اہل سنت کی روشنی میں بیان کریں گے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہین۔ جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں، ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی، میں نے یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کے خون کے بدلے میں 70,000 لوگوں کو مارا، اور بے شک میں آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے کے بدلے میں 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 لوگوں کو ماروں گا۔ یہ امام شافعی کی حدیث کی الفاظ ہیں، اور قاضی ابو بکر بن کامل کی حدیث میں ہے، بے شک میں نے یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیا، اور بے شک میں آپ کی لخت جگر کے بیٹے کے خون کا بدلہ بھی لینے والا ہوں۔ اسے امام حاکم، خطیب بغدادی اور ابن عساکر نے روایت کیا۔ امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ امام زوبی نے کہا یہ حدیث عمدہ سند والی ہے۔ اسے امام حاکم نے المستدرک میں جلد 3 صفحہ نمبر 195 اور حدیث نمبر 4822، اسی طرح جلد 2 صفحہ نمبر 319 اور 648، حدیث نمبر 4152 اور 3147 پہ بیان کیا۔ اسی طرح خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں جلد 1 صفحہ نمبر 142 اور ابن عساکر میں تاریخ مدینہ دمشق جلد 14 صفحہ نمبر 225 اور ابن جوزی نے المنتظم میں جلد 5 صفحہ نمبر 346 اور زہبی نے سیر اعلام النبلاء میں جلد 4 صفحہ نمبر 342 اور طبرانی نے معجم الکبیر جلد 5 صفحہ نمبر 185، حدیث نمبر 5037، اسی طرح ہیثمی نے مجمع الزوائد اور ہندی نے کنز العمال میں اس روایت کو بیان فرمایا۔ قاتلان حسین کا انجام اور عذاب الہی کا ظہور۔ امام زہری روایت کرتے ہیں کہ جب حسین بن علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ اسے امام طبرانی، بہقی اور ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ امام ہیثمی نے فرمایا اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔ اس روایت کو طبرانی نے معجم الکبیر جلد 3 صفحہ 113، روایت نمبر 2834، اسی طرح زوبی نے دلائل النبوہ، ابن سعد نے طبقات الکبریٰ، مزی نے تہذیب الکمال، زوبی نے سیر اعلام النبلاء اور ہیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے۔ امام ابن شہاب سے مروی ہے کہ جس دن حضرت حسین بن علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو شام میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ امام ہیثمی نے فرمایا اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال صحیح مسلم کے رجال ہیں۔ طبرانی نے معجم الکبیر میں جلد 3 صفحہ نمبر 113، روایت نمبر 2835 اور ہیثمی نے مجمع الزوائد میں جلد 9 صفحہ نمبر 196 پر روایت کیا۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ بیان کرتی ہیں کہ حضرت حسین بن علی علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا تو میں چھوٹی بچی تھی۔ اس وقت آسمان کئی دن تک ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کی طرح سرخ رہا۔ امام ہیثمی نے فرمایا اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی حضرت ام حکیم تک صحیح مسلم کے راوی ہیں۔ اسے طبرانی نے معجم الکبیر میں، بہقی نے دلائل النبوہ اور امام ہیثمی نے مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ نمبر 196 پر روایت کیا۔ زوید جوفی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو ان کے لشکر سے اونٹوں کو لوٹا گیا، اور جب ان اونٹوں کو ذبح کر کے پکایا گیا تو وہ خون میں بدل گئے، سو انہوں نے ہانڈیوں کو الٹ دیا۔ امام ہیثمی نے فرمایا اسے امام طبرانی نے ثقہ رجال کے ساتھ روایت کیا ہے۔ معجم الکبیر طبرانی جلد 3 صفحہ 121، حدیث نمبر 2864، اسی طرح امام ہیثمی نے مجمع الزوائد میں جلد 9 صفحہ نمبر 196 پر روایت کیا۔ ابو قبیل سے مروی ہے کہ جب حضرت حسین بن علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو سورج کو اس قدر گرہن لگا کہ دوپہر کے وقت تارے ظاہر ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ رات ہو گئی ہے۔ امام ہیثمی نے فرمایا اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ طبرانی نے معجم الکبیر میں جلد 3 صفحہ نمبر 114، روایت نمبر 2838، اسی طرح امام ہیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا۔ عیسیٰ بن حارث الکندی سے مروی ہے، انہوں نے کہا جب حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو ہم 7 دن تک جب بھی عصر کی نماز پڑھتے تو سورج کو باغات کے اطراف زرد چادروں کی مانند دیکھتے، اور ہم نے ستاروں کو دیکھا
तो यूँ लगता था कि इनमें से बात से टकरा रहे हैं। इसे इमाम तिबरानी ने रवायत किया। तिबरानी ने मोजमुल कबीर में जिल्द 3 सफ़ा नंबर 114 रवायत नंबर 2839 और इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद जिल्द 9 सफ़ा नंबर 197 पे इसको रवायत किया। अमर बिन बाजा बयान करते हैं, बेशक इस्लाम के बाद पहली ज़िल्लत जो अरबों पर मुसल्लत हुई वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने और ज़ियाद के मुतल्लक अमीर मुआविया का दावा है कि वो उनका भाई है। इमाम हैसमी ने कहा इसको इमाम तिबरानी ने रवायत किया है और इसके रावी सिका हैं। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द 7 सफ़ा नंबर 258 हदीस नंबर 35,860। इसी तरह तिबरानी ने मोजमुल कबीर जिल्द 3 सफ़ा नंबर 123 हदीस नंबर 2870 और हैसमी ने मजमू ज़वाइद में इसको रवायत किया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि जब हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास लाया गया और एक तश्त में रख दिया गया तो वो बदबख्त इस पर लकड़ी से मारने लगा और आपके हुस्न और खूबसूरती के बारे में भी कुछ कहा कि मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत चेहरा नहीं देखा। इस पर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मुशाबे थे। इन्होंने वस्मा का खज़ाब इस्तेमाल कर रखा था। सही बुखारी हदीस नंबर 3748 और जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3778। जामे तिर्मिज़ी की हदीस में है, सैयदना अम्मारा बिन उमैर ताबी रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि जब मुख्तार सकफ़ी की फ़ौज की जानब से जंग के बाद यजीद बिन मुआविया के इराकी गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद और उसके साथियों के सर काट कर लाए गए तो उन सरों को एक कतार में मस्जिद में लोगों की इबरत के लिए रख दिया गया। मैं भी वहाँ पहुँचा तो लोग किसी खौफनाक शय को देख कर कह रहे थे, वो आया वो आया। अचानक मैंने एक सांप को देखा जो सरों के दरमियान से गुजरता हुआ उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के नथनों में घुस गया और थोड़ी देर उसके सर में रुका, फिर निकल कर गायब हो गया। कुछ देर बाद फिर शोर मचा, वो आया वो आया। सैयदना अम्मारा ताबी रहमहुल्लाह का बयान है कि इस तरह उस सांप ने 2 या 3 बार ये अमल दोहराया। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3780। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं कि ये हदीस हसन सही है। खल्फ बिन खलीफा अपने वालिद से बयान करते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो आसमान स्याह हो गया और दिन के वक्त तारे ज़ाहिर हो गए, यहाँ तक कि मैंने असर के वक्त जोज़ा सितारे को देखा और आसमान से सुर्ख मट्टी बरसी। इसे इब्ने इसाकर में तारीख मदीना तो दिमिश्क में, मिज़ी ने तहज़ीबुल कमाल में और इब्ने हजर अस्कलानी ने तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द 2 सफ़ा नंबर 305 पे रवायत किया। हज़रत असलम रवायत करते हैं कि मुझे इस शख्स ने बताया जो वाक़या करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सफ़ में शामिल था। वो कहते हैं कि एक आदमी जल्दी से आया और कहा, तुम में से हुसैन कौन है? तो सबसे पहले आपने इसे जवाब दिया और फरमाया, मैं हूँ हुसैन। ए अल्लाह के बंदे क्या चाहते हो? इसने कहा, ए अल्लाह के दुश्मन अल-याज़ु बिल्लाह, तुम्हें आग की खुशखबरी हो। रावी बयान करते हैं कि आपने फरमाया, तेरा सत्यानाश हो, मुझे ये बात कह रहे हो? इसने कहा, हाँ। आपने फरमाया, ऐसा क्यों होगा जबकि रहम फरमाने वाला रब और अतात किए जाने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मौजूद है। ए अल्लाह, अगर तेरा ये बंदा झूठा है तो इसे जहन्नम की आग में घसीट और इसे आज के दिन अपने साथियों के लिए इबरत का निशान बना दे। रावी बयान करते हैं कि थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इसने अपने घोड़े की लगाम को मोड़ा तो घोड़े ने इस शख्स को उछाला और वहीं गिरा दिया, जबकि इसके पाँव इसकी रकाब में ही फंसे रहे। वो रकाब को मारने लगा यहाँ तक कि इसे काट दिया। रावी बयान करते हैं कि मैंने इसके अज़ा को ज़मीन में घसीटे जाते देखा। रावी बयान करते हैं कि बाखुदा हमने आपकी दुआ के जल्द कबूल हो जाने पर इतना तज्जुब नहीं किया जितना इसके कत्ल होने तक हमारे ठहरे रहने पर कोई इसे बचाने की कोशिश भी न कर सका। इस दौरान हमारे दिल ऐसे थे जैसे लोहे की तख्तियाँ हों। इमाम हैसमी ने कहा, इसमें अता बिन साहिब हैं जो कि सिका हैं, लेकिन वो आखिरी उम्र में दिमागी इख्तलात का शिकार हो गए। इसे तिबरानी ने मोजमुल कबीर जिल्द 3 सफ़ा 116 रवायत नंबर 2849 और हैसमी ने मजमू ज़वाइद जिल्द 9 सफ़ा नंबर 193 पर रिवायत किया। कल्बी बयान करते हैं कि एक शख्स ने हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को जबकि वो पानी पी रहे थे कोई चीज़ मारी जिससे आपका जबड़ा मुबारक जख्मी हो गया, तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला तुझे कभी सैराब न करे। रावी बयान करते हैं कि फिर इसने इतना पानी पिया कि पी कर इसका मैदा फट गया जिससे वो मर गया, मगर इसकी प्यास खत्म न हुई। इमाम हैसमी ने फरमाया, इसे इमाम तिबरानी ने रवायत किया है और इसके तमाम रावी सिका हैं। मोजमुल कबीर तिबरानी जिल्द 3 सफ़ा नंबर 114 रवायत नंबर 2841, मजमू ज़वाइद जिल्द 9 सफ़ा नंबर 193 और मुहिबुद्दीन तबरी ने ज़खायर उक़बा में जिल्द 1 सफ़ा नंबर 144 पर रवायत किया। शोबी बयान करते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा गोया कुछ लोग हैं जो आसमान से उतरे, इनके पास आलाते हर्ब भी हैं और
वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों का खोज लगा रहे हैं। थोड़ी ही देर थी कि मुख्तार मैदान में उतरा और आपके कातलों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया। इमाम हैसमी ने कहा, ऐसे इमाम तिबरानी ने रवायत किया और इसकी सनद हसन है। मोजमुल कबीर तिबरानी जिल्द 3 सफ़ा 113, इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद जिल्द 9 सफ़ा 196 पर इसको रवायत किया। अबू हमीद अत्ताहान बयान करते हैं, मैं खज़ा में था तो यजीदी लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तुर्का में से कोई चीज़ जानवर वगैरह लेकर आए। इनसे कहा गया, क्या हम इसे ज़िबा कर लें या इसे बेचकर इसका माल आपस में तकसीम कर लें। इसने कहा, ज़िबा कर लो। वो बयान करता है, फिर वो बड़े प्याले पर खाने के लिए बैठ गया। जब वो प्याला रखा गया तो वो आग से भड़क उठा। इसे इमाम तिबरानी ने मोजमुल कबीर, इब्न असाकिर में तारीख मदीनतुद दिमिश्क और इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद जिल्द 9 सफ़ा नंबर 196 पर रवायत किया। अब्दुल मलिक बिन कुरदोस ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबान से रवायत किया कि इसने कहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के वक्त मैं उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पीछे महल में दाखिल हुआ तो इसके चेहरे पर आग भड़क उठी। तो इसने इस तरह अपनी आस्तीन से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, क्या तूने ये मंजर देखा है? मैंने कहा, हाँ। इसने मुझे हुक्म दिया कि मैं इसे छुपाए रखूं और किसी से बयान न करूं। इमाम हैसमी ने कहा, उबैदुल्लाह के दरबान को मैं नहीं जानता, इसके अलावा बाकी तमाम रावी सिका हैं। मोजमुल कबीर तिबरानी जिल्द 3 सफ़ा नंबर 112, रवायत नंबर 2831। इसी तरह इब्न असाकिर में तारीख मदीनतुद दिमिश्क में और इब्न कसीर ने अल बिदाया वन निहाया और हैसमी ने मजमू ज़वाइद में इसको रवायत किया। हज़रत अबू कबील बयान करते हैं कि जब इमाम हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो यजीदियों ने आपके सरे अनवर को तन से जुदा कर दिया। फिर पहले मरहले में वो सर मुबारक के काटने की खुशी में बैठकर नबीज़ पीने लगे तो दीवार से एक लोहे का कलम नमूदार हुआ। इसने खून की सतर से ये शेर लिखा, अतरजू उम्मतू कतलता हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाब। क्या वो उम्मत जिसने हुसैन को शहीद किया यौम क़यामत इनके नाना की शफात की उम्मीद रखती है? वो लोग ये देखकर भाग गए और सरे मुबारक को वहीं छोड़ गए। बाद अज़ां दोबारा वापस आए। इमाम मिज़ी और ज़ोबी ने इसकी तायद की है। तिबरानी ने मोजमुल कबीर में इसको बयान किया, मिज़ी ने तहज़ीबुल कमाल, ज़ोबी ने तारीख़ इस्लाम, हैसमी ने मजमू ज़वाइद और सयूती ने खसाइसुल कुबरा, इसी तरह इब्न अबी जरादा ने बग़ियतुत तल्ब में इसको बयान किया। हज़रत कुर्रा बिन खालिद फरमाते हैं कि मैंने सुना कि हज़रत अबू रिजा अतारदी फरमा रहे थे, हज़रत अली अलैहिस्सलाम और इनके अहले बैत को गालियाँ मत दो। एक दफ़ा कबीला बिलजीम का हमारा एक पड़ोसी कहने लगा, क्या तुमने नहीं देखा कि मुआज़ल्लाह इस फासिक हुसैन बिन अली को अल्लाह ताला ने कत्ल कर दिया? इसका यही कहना था कि इसी वक्त अल्लाह ताला ने इसकी दोनों आँखों में फोले की बीमारी डाल दी। इस तरह अल्लाह ने इसकी बसारत छीन ली। इमाम हैसमी ने फरमाया, इसे इमाम तिबरानी ने रवायत किया है और इस हदीस के रिजाल सही मुस्लिम के रिजाल हैं। तिबरानी ने मोजमुल कबीर जिल्द 3 सफ़ा नंबर 112, हदीस नंबर 2830 और हैसमी ने मजमू ज़वाइद में इसको बयान किया। आमश से मरवी है कि आपने बयान किया कि बनु उसद में से किसी शख्स ने हज़रत हुसैन बिन अली की कब्र पर अल-अयाज़ु बिल्लाह गंदगी फैलाई। रावी बयान करते हैं कि इसके घर के तमाम लोग पागलपन, जुनून, कोहड़, बीमारी और फ़क्र का शिकार हो गए। इमाम हैसमी ने कहा, इसे इमाम तिबरानी ने रवायत किया है और इसके रिजाल सही मुस्लिम के रिजाल है। तिबरानी ने मोजमुल कबीर में, ज़ोबी ने सीर आलामुन नुबला में और हैसमी ने मजमू ज़वाइद में रवायत किया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने जिन्नात को हज़रत हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम पर नोहा करते सुना। इसे इमाम तिबरानी ने रवायत किया। अहमद बिन हम्बल ने फ़ज़ाइल सहाबा ने और इब्न अबी आसिम ने रवायत किया है और हाफ़िज़ इब्न कसीर ने कहा यह सही है और इमाम हैसमी ने कहा इसे इमाम तिबरानी ने रवायत किया और इस हदीस के रावी सही मुस्लिम के रावी हैं। तिबरानी ने मोजमुल कबीर जिल्द 3 सफ़ा नंबर 121 और 122, रवायत नंबर 2867 और 2862। अहमद बिन हब्बल ने फ़ज़ाइल सहाबा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 776, रवायत नंबर 1373 और हैसमी ने मजमू ज़वाइद में बयान किया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से लेकर आज तक जिन्नों का नोहा नहीं सुना मगर आज रात सुना है और मेरा यही ख्याल है कि मेरे बेटे हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया है। फिर इसने अपनी बांदी से फरमाया, बाहर जाओ और मालूम करो। वो गई तो इसे बताया गया कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया है और एक जिन्नी मादा जिन नोहा कर रही थी, ए आँख कोशिश के साथ बाहर आ और मेरे बाद शुहदा पर कौन रोएगा, एक ऐसे गिरोह पर जिन्हें इनकी मौतें घेर कर करबला में ले गई, ऐसे हैरान व परेशान की तरफ जो गुलाम की बादशाहत में है। इसे इमाम तिबरानी और इब्न असाकिर ने रवायत किया है। तिबरानी ने मोजमुल कबीर जिल्द 3 सफ़ा नंबर 122 में और जलालुद्दीन सयूती ने खसाइसुल कुबरा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 215 पर रवायत किया।